Good morning, everyone. Myself, Devesh Sharma from Furniture and Fitting Skill Council, and I would like to welcome all of you from on behalf of FFSC to this webinar series of unlocking skills in furniture and fitting sector. As a part of this series, today's session is focused mainly on skill competitions and to be very precise how our journey has been so far and what we have achieved and what we have to do in future. To begin my session, I would like to start with a PowerPoint presentation to give you about what we do at World Skills level. So we are here with the start of the session of unlocking skills in furniture fitting sector, skill competition, and its importance. So at World Skills, we inspire young people to develop passion for skills and pursuing excellence through competitions and promotions. We develop skills through global training, standards, benchmarking system, and enhancing industry engagement. We influence industry, government, educators to bring in cooperation and research building to build a global platform for skills for all. Now we are going to talk about what is this World Skills. World Skills is a global organization which was founded in 1950. It's a global hub for skills excellence and development. World Skills bring youth, industries, and educators together to give youth the chance to compete, experience, and learn how to become the best in their skill of choices. From the traditional trades to multi-skill technology careers in industry and service sectors. Supported by partners, industries, government, volunteers, and educational institutions. World Skills vision is to improve the world through the power of skills. It has 75 member countries and regions, all working with youth, educators, governments, and industry to help prepare the workforce and talent of today for the jobs of the future. Like World Skills, a global organization, we have World Skills India active in our country. World Skills India is an initiative of NSTC, National Skill Development Corporation, under the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, Government of India. NSDC, through its World Skills India initiative, has been leading the country's participation at World Skills International Competition since 2011. The key objective of World Skills India is to promote skills in society, to motivate the youth to pursue vocational education, champion skills and learning for work through local, regional, national, and international skill competitions, create partnership, network comprising of government, industry, academia, VET institutions, trade associations, and youth to promote skills. It establishes long-term association with World Skills International and other World Skills member countries so that we can bring the global standards in our country. Here's the vision and the mission for which we guys are working. It's a platform where emerging professionals can display their workplace skills with utmost perfection and make India proud. We facilitate cooperation between government, industry, and academia.
Am I audible to everyone? I guess I missed in between. Yeah. So here we were. So let's learn something. Let's have a brief description about what's cabinet making is all about. Cabinet making is a trade in which working in wood to create high quality furniture and units, showing skill and an aesthetic understanding of design and finish. As the name suggests, we can understand what kind of a product or what kind of a job we need to create, we need to develop during the competition. Second trade is a joinery trade, cutting and joining interior and exterior items from windows and stairs to bookshelves and tables for both commercial and residential projects. Now we come to the carpentry. In our country, anyone working with wood is known as a carpenter. Anyone working on wood, the skill is known as a carpentry. Whereas at international platforms, carpenters are the key members of the construction industry. They are responsible for all the wooden structures involved in building projects, from installing staircases, building roof, to fitting windows and door frames. So mainly it's like creating the wooden structures. So as I briefed earlier, that we started as a nation, we started to participate in WorldSkills from 2011, whereas the journey for India in furniture and fitting trade started from 2017, when Mr. Anant Kumar represented India in WorldSkills 2017 in Abu Dhabi in the trade cabinet making. Last year, in continuation to WorldSkills 2017, in WorldSkills 2019, Mr. Kesar Singh Rajput represented India in cabinet making trade. In the same year, in WorldSkills 2019, Mr. Vikas Kumar Naga represented India in joinery skill. So here is the entire Team India's performance. That in Team India stood 13th in WorldSkills 2019. We won 1 gold, 1 silver, 2 bronze. India participated in 44 trades with 48 competitors. So before moving ahead to our panel discussion, I would like you to view this video developed by National Skill Development Corporation to give the glimpse of Team India at WorldSkills Kazan 2019. One of you is a champion. Savor every moment. And of course, enjoy yourselves. Please welcome India! По стандарту WorldSkills объявляю открытым. ये सब बताइए और नहीं yes.
ठीक है, ठीक, मतलब आज डिसाइड नहीं होगा, मंडे को डिसाइड होगा, अपन ट्यूसडे को बैठते हैं। मिलता है ना 30-40 डेज। Спасибо, Татарстану. Спасибо, Казани. So this is how we have performed in WorldSkills 2019. It was a video to give you a feeler how the WorldSkills competition look like. So to move ahead, I would like to introduce our panelists to you. Panelist number one with us is Mr. Ashok Jangir. He's a WorldSkills India expert in cabinet making. He holds building studies diploma from TAFE Sydney with occupational health and safety certificate from South Wales, Sydney. Along with that, he has done certification in carpentry from Brisbane, Australia, with 6 years of mandatory apprenticeship. Mr. Jangir brings more than 15 years of experience in woodworking sector and is currently employed with IRAJ Evolution Design Company Limited as Chief Manufacturing Officer. He has represented India as expert in WorldSkills 2017 Abu Dhabi. In WorldSkills 2019 cycle, he has led team of jury members for state, regional and national skill competitions. That was India Skills 2018. He has also participated in Global Skill Challenge in Melbourne, Australia in 2019 as Indian expert. Our panelist number two is Mr. Naren Singh Rathore. He is a WorldSkills India expert joinery pursuing PhD in wood, alternate materials and surface techniques. He holds MTech in manufacturing system engineering from NIT Jaipur. He brings more than 10 years of experience in woodworking sectors and holds experience in setting India's first skill university in woodworking, first skill lab in woodworking sector. Currently, he works with Onoma Group of Companies as Chief Design and Development Officer. He has represented India as an expert in Euroskills Budapest 2018. In WorldSkills 2019 cycle, he has led team of jury members for state, regional and national skill competitions. He also participated in Global Skill Challenge in Melbourne, Australia 2019 as an Indian expert for joinery trade. From NSDC side, our panelist is Mr. Ashish Malhotra. He's a specialist in industry alliance, government relations, and program management. He has worked in sports, retail, and social development skill sector, to be very precise, for almost 2 decades. Prior to National Skill Development Corporation, he has enriching experience to work with the organizing committee, Commonwealth Games, Delhi 2010, and CII. At NSDC, in his role of project manager for WorldSkills India, he has been a teacher for 3 international competitions, has contributed in other areas like CSR, aspirational skilling Abhiyan, etc. He has been a professional cricketer and has played first-class cricket, Ranji Trophy for Delhi in all the formats. He has played for English County Cricket and was selected for IPL for Delhi Daredevils and Kolkata Knight Riders in earlier sessions. He has been a regular theatre artist with Asmita Theatre Group. To represent industry, we have Mr. Satyam Thukral, the Chief Executive Officer of Capel Industrial Solution. Capel Industrial Solutions and Mr. Satyam Thukral has played an important and vital role with FFSC in conducting regional, national skill competitions
even sponsoring the candidate to international competitions like Global Skill Challenge Australia, World Competition 2017 and 19 in Abu Dhabi and Kazan, respectively. Mr. Satyen Chakral is a core member of Governing Council, Steering Committee, and Board of Standards of FFSC. We have Mr. Anant Kumar as a final panelist with us. He's a World Skills 2017 alumni in cabinet making, the first competitor to participate in World Skills competition in furniture and fitting trade. He has played an important role in designing test projects for state, regional and national competitions for World Skills 2019 cycle under the guidance of Mr. Ashok Janged and Naren Singh Rathore. He has been involved in training of candidates for World Skills 2019. Currently works with IRAJ Evolution Design Company Limited as furniture designer. So let's move forward to our discussion. And first of all, I would like Ashish to join in. Yeah, Ashish, we would like to hear from your side India's journey to all the World Skills competitions so far, what we have achieved and how the road ahead is going to be. Good morning, everyone. First of all, thank you to Furniture and Fitting Skill Council, Rahul and Devesh for putting up this session so that we can get more collaboration and get more people into World Skills India movement. See, the journey has actually started for World Skills in 2007 when India initially participated in the first competition way back when after getting membership in 2006. So subsequently we have been participating regularly, and in the transition manner the skills have been increasing year on year. As you know, it happened once in 2 years. World Skills baton was given by the ministry to NSDC in 2010, and since then NSDC has been leading this initiative. My journey with World Skill India has got associated since 2014, and with a lot of confidence I can say the journey has been fantastic. While we were quite below at the medal tally and the world ranking, and from there we have transitioned to winning medallions and finally winning gold medal last year. World Skill event per se is a spectacular event and is a must watch. As it is said, seeing is believing. Feel is different when you are there in the venue, and which showcase and inspire skill excellence. The entire experience actually changes your perception and creates a pathway to professional identity for the youth who is participating as competitors and other individuals involved in different capacities. As the organization World Skills India and World Skills International, they are amazing in the manner what they accomplish year on year with such lean teams and surprise everyone around the globe. Specifically, what Devesh asked about the journey, as I see the journey, it is just the beginning of a massive movement which we are going to see in later years, and a continuous learning platform. And specifically with regards to the journey of the Sector Skill Council, it actually started in 2016 when the predecessors, Mr. Gurpal Singh and Parvesh, came to us, and we were actually looking for to increase the number of skills, and that came in as a pleasant surprise, which and then we started participating in from 2017 carpentry and cabinet making, and last year it was cabinet making and joinery. I'm sure Rahul and Devesh as a team and the team under them are going to create history in coming future.
we expect the same, Ashish. Next is how what are the trades which are doing great in terms we talk about world skills, that it is spread across 52 to 55 trades. Uh, so which trades are doing constantly better? How, what is the reason behind that? If you can just elaborate, because it's going to be a learning for us as well. Yeah, first of all, just the information, there are 6 sectors under which there are 56 skills. So your trade come under construction and building. Uh, See, there have been variety of skills under each sector, say under each category, which have been performing sometime better, sometime not, and sometime consistently. So I would rather ponder upon, and each competition is different, and each competition is unique in its own creation. And over the past 6 years and 3 competitions which I have been, my analysis is every time uh, uh, some skills which are predictable, which are going to do better, uh, but there are a lot of pleasant surprise also. So I would rather get into the reasons uh, than the trades. See, plus I will give an example as well. Uh, the the entire thing is based on the teamwork. There is back end, there is front end. Back end, we all at NSDC and WorldSkills India, we take care of it. Uh, and the front end is led by the SSC, who in turn get the partners, find the trainers, get industry, get corporates, get academic institutions together, and make it a cohesive unit and as a team which moves forward. So this team is very critical for finding the right candidate, right trainer, right mentor. So once this unit is in place and they have a clear goal with persistence, then it becomes very focused way of moving ahead. So finding the right candidate, finding the right expert, finding the right trainer is the key. Secondly, once that is done, there has to be a step-by-step approach, which is a plan. We actually call it a process because there are specific tasks to do which are related to our work environment, which is the test project. So the process needs to be done repeatedly as a again and again until it gets chiseled in the mind of all the people, all the stakeholders, key stakeholders, especially the candidate and the trainer. Trainer need not be one because there are different modules, there are different aspects in the test project. So variety of trainers, yes, one person will go as an expert, but variety of trainer when they work as a unit because each one specializes in their own area. And if that has been transferred to the candidate, so then the performance is the optimum. Other than those, there are generic and basic traits which each individual needs to contribute, especially the candidate. The development of competitive capabilities, sustained internal motivation, research, attention to detailing, and I would lay emphasis on professionalism and precision. The reason is professionalism because this is not a academic competition. This is a theory and practical, which actually is the required in the industry. So professionalism is important. Precision because the task which is given in any skill needs to be exact and accurate what have been asked for. So that's these are the reasons which I feel
are critical for success factor. And Toyota as an organization which leads in mechatronics, prototype modeling, I see them as one of the example. The way they document it, the way they invest on it, the way they get the industry support from other players in the industry whenever it is required. So that's what I believe are the success potentials. Ashish, you have seen three international world skills competition. In between, you have led team to various international other competitions as well. There might be some candidates who can be quoted as a great success stories. Can you name few and how what are those success stories? So that the candidates, because today our most of our attendees are the students from Indian Wood Institutes, Bharatiya Skill Development University, Centurion University. They all are preparing for coming World Skills competitions. So few success stories can motivate them to a greater extent. Okay. I will mention three success stories. But before that, I would like to apprise everybody and all the potential candidates, trainers, experts, and industry players who will help us in this journey ahead. See, every time when we participate in a competition, this is a skill competition which is multi-skill at international level. It is also called Olympics of Skill. So when we put the term Olympics, it is also perceived as Olympics in sports which have multi-events. And as a byproduct of it, everybody asks what is the world ranking, how many medals you have got. That's how people measure this thing. Yes, it has been a slow progression. We have increased in the medal tally since in 2011. I remember our position was 39th in the world, and we had just one medal with us. But later years, a medallion increased, medal increased, gold, silver, bronze, and last year in 2019, we have reached our world ranking of 13th out of 65 countries which participate. So, ranking and medal is one part. The other part, what I believe is how a success story or these people are made. The second is that each candidate, it is not necessary they win medallion or medal. Each candidate who has gone under this training of world skill and participated at a decent level and at international level, their life has enriched in many manners. And so this is another goal of World Skills India, to enhance lives of young professionals at a very early age. Just to quote an example, there was a girl who participated in beauty therapy in 2015. She came through a process. She won the India Skill part in 2014 and then participated in 2015 at international level. But her journeys actually started in 2012. She was a runner-up in India Skills in 2013. She did not give up. She kept pursuing the trade. She kept learning. And so you understand, she started in 2012 participating and training for that. And she actually got a chance to represent India in 2015. So gestation period of these 4 years is not easy to sustain. And today, after that, she owns her institute. She has a lot of franchises in India. She trains people. She trains potential world skill candidates. That is one example which, from a very humble background, which we see. Second example which I would like to quote was
from welding skill. There was a guy from Sachin Rale. He was from very small town in Maharashtra, and until India skill, he was very average, and he could not do much about it. And then we gave him an exposure, and he went to New Zealand to participate in Oceania competition, and he came last over there. We don't know what happened to him after that. The way he trained himself, not only in the skill, but in soft skill and motivation, technical, non-technical parts. And when he represented India, he became the highest scorer from India. He got Albert Vidard medal. He got, sorry, not Albert Vidard. He got highest nation award for India because highest marks in all the skills. And he got a medallion of excellence. And today he's a trainer with Mahindra. Anand Mahindra has recognized his efforts and has rewarded him substantially, monetarily as well as career-wise. The last example which I would like to quote, which is way back, which I believe is worth mentioning and everybody should know about it. See, the team which represent India is a unit which is of candidate, expert, and if required, an interpreter. Plus SSC is there, the industry people are there. So this guy called Priyadarshan, in 2009, he won a silver medal for India when India participated in only 2 skills. He was from the skill of plastic dye engineering. He won silver medal in 2009. Now today he is in L&T. He's a product design engineer in L&T Technology. Why I am mentioning him? Because at that point of time, he was the only representative. There was no expert. There was no trainer. There was a little bit of training in India, which he got. There was no interpreter. There was nobody with him. He was alone. And he, with his knowledge, persistence, practice, understanding, with his internal motivation, with his courage, he won a silver medal for India. That was the first one what we got. So there are examples you need to pick up. These are just for references and to get motivated, but ultimately individual's passion and drive towards making it happen will make all the difference. Great. Thank you, Ashish, for this information. We'll get back to you once we are done with all the panelists. Stay with us because your inputs at each and every level will be required. So we'll move to the joinery part. We move to Naren Singh. Naren Singh, India represented joinery in 2019. So first of all, मैं ये जानना चाहूँगा कि joinery skill क्या है? What is a joinery as a trade? Because हम इंडिया में joinery बहुत कम सुनते हैं. जी, so देवेश जी, joinery के अंदर जो material यूज होता है वो natural wood यूज होता है और खास बात इस प्रोडक्ट की ये होती है कि इसमें हम किसी तरह के कोई स्क्रू, नेल्स या कोई असेंबली टेक्निक्स या असेंबली हार्डवेयर यूज नहीं करते हैं. तो नेचुरल वुड को यूज करते हुए आप जो ट्रेडिशनल वुड जॉइंट्स हैं उससे असेंबली करते हैं, देन फिनिशिंग करते हैं. तो इस प्रोसेस पे जो भी प्रोजेक्ट होता है उसको अपन जॉइनरी प्रोजेक्ट बोल सकते हैं. फॉर एग्जांपल डोर, विंडो, फ्रेम, आपका रेजिडेंस फर्नीचर में आपका डाइनिंग टेबल हो गया, चेयर हो गया. तो कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जहाँ पे हम नेचुरल वुड के साथ में ये सारी असेंबली टेक्निक्स यूज करते हैं, वुडन जॉइंट्स यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड जॉइनरी प्रोडक्ट. सो नरेन जी, अभी तक मतलब वुड वर्किंग इज वेरी ओल्ड इन इंडिया. बहुत पुराना आर्ट है, बहुत पुराना काम है हिंदुस्तान में. लेकिन अभी तक जॉइनरी एक शब्द का इस्तेमाल इतना फ्रीक्वेंटली हुआ क्यों नहीं? जी, फैक्ट ये है कि जो जॉइनरी है एक्चुअल में इंडियंस उसको कारपेंटरी बोलते हैं. आप देखिए कि जो कारपेंटर है, जो साइट पे वर्क करते हैं, जो इंडस्ट्री में वर्क करते हैं, वो हमारे रेजिडेंस फर्नीचर पे वर्क करते हैं, डोर पे, फ्रेम पे, विंडोज पे वर्क करते हैं. एक्चुअल में वो जॉइनरी है लेकिन वो उसको कारपेंटरी बोलते हैं.
और जो मुझे रीजन इसके पीछे समझ में आता है, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वहां पे ये बहुत बेसिक ट्रेड है, एक बहुत पुरानी ट्रेड है, एकेडमिक में भी यूज होती है, इंडस्ट्री में भी यूज होती है। इंडिया में एकेडमिक्स में ये यूज नहीं होती है, एक बहुत छोटा सा कोर्स ITI हमारा कोर्स चलता है, उसको भी हमने नेमिंग कारपेंट्री दे दी। तो इंडिया में एक मिथ है कि जो भी वुडन के साथ हो रहा है हम उसको कारपेंट्री ही बोलेंगे, बट एक्चुअल में 80-85% वर्क जो होता था 10-15 साल पहले, जब तक ये पैनल बेस्ड इंडस्ट्री डेवलप नहीं हुई थी, वो सारा ज्वेलरी होता था। अभी ज्वेलरी प्लस कैबिनेट मेकिंग होता है। आप फैक्ट चेक करेंगे तो कारपेंट्री टाइप का तो वर्क इंडिया में होता ही नहीं है। जैसा इंट्रोडक्शन में आपने बताया कि हाउस स्ट्रक्चर, होम स्ट्रक्चर में कारपेंट्री काम आता है, तो बहुत लिमिटेड कंपनीज या लिमिटेड एजेंसीज हैं जो कारपेंट्री के वो करती हैं। बाकी जो मेन है अपना ज्वेलरी और कैबिनेट मेकिंग। ओके, सो नरेंद्र जी, आप भारतीय स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी में इंडिया का सबसे बड़ा वुड वर्किंग लैब आप लगाने में आप पार्टिसिपेट किया है, यू वर द पार्ट ऑफ दैट यूनिवर्सिटी। उसके बाद बिकॉज दैट यूनिवर्सिटी रन्स ऑन अ स्विस डुअल मॉडल, then you went to Euroskills, you had experience of Budapest, further on with Australia, and going forward to WorldSkills. So how you rate your journey from Budapest, India's skill ecosystem, then going to WorldSkills? How you rate your journey as an expert in this span of time? देखिए, इंडिया ने जो इंडिया स्किल में पार्टिसिपेट किया था ज्वेलरी ट्रेड्स के लिए, दैट वाज फर्स्ट टाइम इन 2018 अक्टूबर से जो प्रीवियस मंथ था सितंबर के अंदर यूरो स्किल हुआ। तो नेशनल से पहले ये एक इंटरनेशनल एक्सपोजर हमें मिला ज्वेलरी के लिए। अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या, ज्वेलरी के अंदर पहले 2 प्रोजेक्ट्स आते थे 11 आवर्स के, 2D प्रोजेक्ट अलग होता था, 3D प्रोजेक्ट्स अलग होता था। लेकिन 17 वर्ल्ड स्किल्स के बाद में एक्सपर्ट ने डिस्कशन फॉर्म में डिस्कस करके और इसको एक सिंगल प्रोजेक्ट कर दिया, 2D और 3D कॉम्बाइन करके। तो यूरो स्किल में पहली बार पता चला कि जो भी हमारे पास में डेटा अवेलेबल है वो डेटा के ऊपर अब प्रोजेक्ट काम नहीं कर रहा है, क्योंकि पहले 11 आवर्स के 2 प्रोजेक्ट होते थे, अभी 22 आवर्स का हो रहा है। सेकेंडली, वर्ल्ड स्किल के अपने कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं, मार्किंग स्कीम है, डिजाइन क्राइटेरिया है, मार्किंग क्राइटेरिया है, एक टाइम मैनेजमेंट होता है, क्वालिटी ऑफ पावर टूल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये सारी चीजें यूरो स्किल में हमने ऑब्जर्व की, क्योंकि पहला हमारा कंपटीशन था, इससे पहले हमारे पास में ना कोई डेटा था, ना कुछ ऐसा एक्सपोजर था जहाँ पे ये चीजें हम लर्न कर पाए। और देन इंडिया स्किल हुआ, इंडिया स्किल में हमने वो सारी चीजें अप्लाई करने की कोशिश की। उसके बाद में 2 इवेंट और हुए हैं, ग्लोबल स्किल और वर्ल्ड स्किल्स। तो हर कंपटीशन में कुछ ना कुछ लर्न हमने किया है। और जो इम्पोर्टेंट चीज है वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी कॉम्पिटिटर जाता है तो वो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है और एक अच्छी ट्रेनिंग लेके जाता है। तो ज्वेलरी स्किल्स तो सबके अंदर होती हैं, लेकिन कंपटीशन जीतने के लिए या एक अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए आपको ज्वेलरी स्किल्स के साथ साथ में एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। क्योंकि देखिए, प्रोजेक्ट को पूरा करके आप नहीं जीत सकते, जो वहां जाएगा प्रोजेक्ट तो पूरा कर ही देगा, लेकिन उसमें एक एक्यूरेसी लेवल होना चाहिए। और जो टाइम प्लान आपका बनाया है एक्सपर्ट के साथ, मिनट टू मिनट टाइम प्लान बनता है 22 आवर्स का, कि किस स्टेज पे आपका प्रोडक्ट कितना कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर आप उसको फॉलो नहीं कर पाते हो तो आगे दिक्कत आती है, क्योंकि एक बार आप पीछे रह जाते हो तो फिर आप स्पीड बढ़ाते हो तो एक्यूरेसी खराब हो जाती है। तो स्पीड और एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए आपको एक अच्छी प्रैक्टिस चाहिए। So, नरेंद्र जी, ज्वेलरी इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्रेड। अगर हम वर्ल्ड स्किल्स का हिस्ट्री भी देखते हैं तो ज्वेलरी एक बहुत पुराना ट्रेड है, और इंडिया हम अभी पार्टिसिपेट उसमें करना शुरू किए हैं। सो एज एन एक्सपर्ट, आप किन चीजों के ऊपर फ्यूचर में काम करना पसंद करेंगे कि हमें इन चीजों के ऊपर काम करना है, सो दैट आवर परफॉर्मेंस इज गोइंग टू बी बेटर इन कमिंग वर्ल्ड स्किल्स और इंटरनेशनल इवेंट्स? इवन जब हम ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, इवन एट आवर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लेवल, इवन एट आवर ITIs level, just to give you a brief information that even FFSC have started the initiative of developing qualification packs as per the world skill standards. Like we are developing the qualification pack in joinery, cabinet making, carpentry is separately, so that the word goes down the line till the to the participants or to the people on the grounds who want to enter into as a joiner, as a cabinet maker, or as a carpenter. So my question remains the same: what you want to learn, what you have learned, how you are going to build upon it? जैसा आपने अभी मेंशन किया, वर्ल्ड स्किल 1950 में स्टार्ट हुआ था, और ये जो वुड वर्किंग ट्रेड्स है यूरोपियन की बहुत ट्रेडिशनल ट्रेड्स हैं।
तो ये कैबिनेट मेकिंग हो गया, कारपेंट्री हो गया, ज्वेलरी हो गया, स्टार्टिंग से ही इन्वॉल्व है। स्पेन में 1950 में फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया। एशियन कंट्रीज की बात करें तो 1975 में चाइनीज ताइपे, कोरिया और एक थर्ड कंट्री और थी, जापान। इन 3 कंट्रीज ने 1975 में पार्टिसिपेट कर लिया। बाकी भी जो कंट्रीज थी मोस्ट ऑफ 1980 से पहले 1981 वर्ल्ड स्किल से पहले की रजिस्टर्ड है। इंडिया बहुत नया है इसमें, 2019 में हमने किया और हमसे 3-4 वर्ल्ड स्किल पहले 2011 के अंदर नामीबिया ने ज्वाइन किया। अगर अपन एकेडमिक पार्ट की बात करें, जैसा अभी आपने सजेस्ट किया कि एफएफएससी कुछ कोर्स प्लान कर रहा है, ये कर रहा है। वर्ल्ड स्किल कंपटीशन इंडस्ट्री प्रोडक्ट से थोड़ा सा अलग है, खासकर ज्वेलरी का। जैसे बताया मैंने कि ज्वेलरी के अंदर जो ट्रेडिशनल वुड जॉइंट्स है उनका यूज बहुत ज्यादा होता है। असेंबली हार्डवेयर जो है, नॉकडाउन फिटिंग्स जो है, नेल्स है, स्क्रूज है, उनका यूज नहीं होता है। हमारा कोई कॉम्पिटिटर है या कोई इंडस्ट्री पर्सन है या जो वुड वर्कर है जो इंडस्ट्री में काम करता है, तो इंडस्ट्री में प्रोडक्ट को कम कॉस्ट में बनाना होता है, जल्दी बनाना होता है, तो इन चीजों का ज्यादा यूज करते हैं। तो जो भी कॉम्पिटिटर हम इंडस्ट्री से लेके आते हैं उसको पहले ट्रेडिशनल वुड वर्किंग की तरफ हमें थोड़ा सा और ज्यादा सिखाना पड़ता है, ताकि वुड जॉइंट्स पे वो ज्यादा फोकस करें। जॉइंट्स बना लेते हैं लेकिन एक्यूरेसी में दिक्कत आती है, टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत आती है। तो जो भी कोर्स हम प्लान कर रहे हैं या जो सर्टिफिकेट प्लान कर रहे हैं उसको वर्ल्ड स्किल से हमें अलाइन करना चाहिए कि जिस तरह के वहाँ प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उस तरह की हम लर्निंग हमारे एकेडमिक पार्ट में और हमारे टीचिंग पार्ट में इन्वॉल्व कर पाए। और बेसिकली स्किल्स में बात करें तो ज्वेलरी स्किल्स के अंदर आपका ड्राइंग, रीडिंग यानी डिजाइनिंग पार्ट आता है, मशीनिंग आता है। सो मशीन में द यूज ऑफ पावर टूल, यूज ऑफ स्ट्रेचिंग मशीन, देन आपकी असेंबली है, वो असेंबली प्रॉपर वुडन जॉइंट से होगी, देन फिनिशिंग एंड इंस्टॉलेशन। तो ये 5 मॉड्यूल्स हैं जिनके ऊपर आपका जो सब्जेक्ट प्लान है, जो आपका मॉड्यूल प्लान है, जो आपका कोर्स प्लान है, वो इनके ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए। अगर ये 5 चीजें कवर होती हैं तो एक अच्छा कॉम्पिटिटर वहां से निकल सकता है, एक अच्छा ज्वाइनर निकल सकता है, जो इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा काम करेगा, जो कंट्री के लिए कंपटीशन में भी अच्छा परफॉर्म करेगा। So from joinery, we are moving ahead to our cabinet making expert, Mr. Ashok. So Ashok, among our all the experts and trainers, you have been the experienced one because you started the journey in furniture fitting trade in cabinet making in 2017. So आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई 2017 में और अबू धाबी में हमने क्या सीखा और what we are going to carry forward ahead. First, good morning everyone, and thank you Furniture Fitting Council and NSDC for giving me an opportunity to made me follow my passion, because ये जो carpentry और cabinet making जो है वो मेरे बचपन से ही, because my parents used to do the same work like my father, my grandfather. So मैंने वो start से ही सीखा और धीरे धीरे when I studied in Australia, same carpentry मैंने वहाँ पढ़ा और फिर मैं यहाँ आके job भी जो carpentry का कर रहा हूँ. So it's always been my passion. So in 2017, when I was working in this company, Irresolute Design Company, which is based in Udaipur only, where I got to know about WellSkill and everything. I used to we used to do when I was studying in Australia, we used to do lots of like regional competition and everything, because हर कॉलेज दूसरे कॉलेज से जाके ऐसे कंपटीशन होते थे, बट we honestly we didn't know about WellSkill. बट परवेश जी और फर्नीचर फिटिंग काउंसिल के थ्रू हमने स्टार्ट किया, एंड आई एट दैट टाइम वो हमारे पास जो कैंडिडेट आया वो ऑलरेडी सेलेक्टेड ही था, आनंद, जो जिसने कारपेंट्री में ITI किया, फिर इसने यहीं WellSkill के लिए पार्टिसिपेट किया, बट I wasn't aware for the selection and everything, but I honestly said that he is the genuine cabinet maker, क्योंकि अभी उसने after competition भी he is with me and he is leading our design department, so ये उसमें skill था ही, but 2017 में हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम पूरा उसके ऊपर, क्योंकि इसके लिए मशीनरी सब कुछ नया था. he was good into रीडिंग डिजाइन एंड एवरीथिंग, बट मशीनरी बहुत नया था इसके लिए, तो वो सब सीखना और ये सब करना, क्योंकि बाहर जो भी कंपटीटर आते हैं they are very skilled, like they start in the age of 14 or 15 and
वो धीरे धीरे एज अप्रेंटिसशिप दे स्टार्ट देयर वर्क, एंड फिर वो क्या होता है, उनको मोल्ड कर दिया जाता है जस्ट for the perfection. And cabinet making, as you said, like it's a woodwork, like it's working in wood to create high quality furniture, showing carpentry skills and aesthetic understanding. So इसमें सबका combination बहुत जरूरी है. And then at the second time when we got with the skill like selection and everything, we got Yuvraj, like Kesar Singh Rajput, sorry. So we got him, but again हमारे पास यही problem था कि he started cabinet making because he used to work here, and then he suddenly realized, oh, that's a great opportunity and everything. So but I will say, क्योंकि ये जो इतना variety of field, इतना बड़ा ये है कारपेंट्री का, कैबिनेट मेकिंग और जॉइनरी का, कि इसमें every day is a new learning. क्योंकि मैं भी आज पिछले 15-20 सालों से काम कर रहा हूँ, but every day हमें कुछ न कुछ नया ही देखने को मिलता है कि ये जॉइंट कैसा होगा, या ये इस मशीन पे ये कैसा होगा. तो 2 साल 1-1.5 साल में परफेक्शन लाना वाज हार्ड, बट ठीक है, हमने बहुत सारी लर्निंग ली 2017-19. नाउ वी हैव गुड पीपल हु आर वर्किंग फॉर अस, एंड थोड़ा सा जो मेरे को लगता है कि इसको थोड़ा स्प्रेड करना जरूरी है. क्योंकि अभी क्या हो रहा है, जैसे अपन सिलेक्शन क्राइटेरिया वगैरह है, तो उसमें हमारा यही है कि जो लोग जानते हैं, कुछ जो इंडस्ट्री जानती है, वहां ही कैंडिडेट ढूंढे जा रहे हैं. बट इफ आई टॉक अबाउट लाइक my hometown and the rural area I belong to, because वहाँ लोग मजबूरी में they start doing this trade and they are really good into it, but वहाँ से उन लोगों को कंपटीशन में लाना, उनको फाइट करवाना, वो भी जरूरी है. That's how I think we will get the good candidate, or it's a good learning. I think we are good to go now, I think. Yeah. So you studied in Australia. You did apprenticeship over there. You were a part of a vocational education system in Australia, and you have been associated with skill ecosystem in India also. So, what are the major differences you see in both the countries? Because it can be a learning aspect for us to bring to do something in line with what Australia's vocational education system do. ऑस्ट्रेलिया में ऐसा है कि कारपेंटर नॉर्मली साइट पे जाके कारपेंटर नहीं बन सकता है कि हाँ ओके आई वांट टू डू कारपेंट्री एंड मैं करना चाहता हूँ. वहाँ यू हैव टू वर्क अंडर अ कारपेंटर फॉर 4 years जस्ट टू गेट अ सर्टिफिकेट कि ओके नाउ यू कैन बी अ कारपेंटर. देन यू हैव टू हैव 2 years एक्सपीरियंस, देन यू गेट अ लाइसेंस टू डू अ कारपेंट्री. सो यहाँ वहाँ पे ट्रेड को बहुत है. जैसे व्हाट आई स्टडीड इज सर्टिफिकेट 3 इन कारपेंट्री, which is necessary to be a carpenter. So certificate 3 is a different thing. It's a necessity to get a carpentry license. So वहाँ जब ये certificate में कर रहा था, तो it shows all the theoretical experience, then the practical experience. So it teaches you design, estimation and everything, like whatever that need to be a skill carpenter, like skillful trading. तो उसके लिए, लेकिन यहाँ अभी जैसे यहाँ in our factory it's like 1200 people are working. So but ये है कि यहाँ कोई ट्रेड नहीं है. like some people know how to do, but फिर उनके पास डिजाइन का वो व्यू नहीं है, उनको एस्थेटिक नॉलेज नहीं है. सो ट्रेड्स आई थिंक यहाँ पे भी अगर थोड़े कॉलेजेस वगैरह जैसे BSDU कर रहा है कि जिसके अंदर आपको ट्रेड्स करा दिए जाते हैं, आपको थियोरेटिकल वो सिखा दिया जाता है, एंड देन यू जॉइन योर ट्रेड. तो इससे आई थिंक ट्रेड को थोड़ा सा ट्रेड स्कूलिंग में करना जरूरी है, जैसे ITI वगैरह भी कर रहा है, बट स्टिल लाइक इसको थोड़ा सा और फैलाना जरूरी है. So, Ashok, you belongs to a woodworking background and you pursued your passion in woodworking. So, आपके हिसाब से what should be our steps as a government, partial government organization or representative of the government to make woodworking aspirational for the youth? Like actually, frankly speaking, बाहर तो ऐसा है कि if a carpenter earns $60 an hour, so it's always a pride job, because लेकिन इंडिया में ये है कि हाँ ठीक है कारपेंटर है and it's a just एवरेज सैलरी, तो उन लोगों को मोटिवेशन मिलता नहीं है. बट व्हाट आई हैव सीन, बिकॉज व्हेन आई केम बैक फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया हियर,
I never knew that it's a, क्योंकि इंडिया में इतना बड़ा इसका इंडस्ट्रीज या ऐसे है, बट आई जब मैं इनके साथ जुड़ा या फिर तो पता चला कि मतलब बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, लेकिन मतलब ये इसको थोड़ा सा ब्रॉड करना जरूरी है क्योंकि बहुत फ्यूचर है। मतलब एवरी डे वी हायर लाइक ऑलमोस्ट 10 और 15%, और हमें एवरीडे नीड है क्योंकि जो 2016 से 2029 का अगर इफ यू रीड द आर्टिकल की सबसे ज्यादा डिमांड होने वाली है एज ए ट्रेड इन कारपेंट्री, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो सबको घर चाहिए, सबको फर्नीचर चाहिए, तो इट्स लाइक बहुत डिमांड है, लेकिन एक फ्लो में नहीं है। ठीक है, हर आदमी छोटे छोटे इंडस्ट्रीज में काम कर रहा है, एक तो सबको टाई होके एक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा कि ओके दिस इज लाइक फर्नीचर फिटिंग काउंसिल इज डूइंग अ ग्रेट जॉब फॉर दैट, बट स्टिल द इंडस्ट्रीज नीड टू गेट टुगेदर टू डिफरेंशिएट कि हाँ ये ट्रेड बहुत अच्छा है एंड देयर इज लॉट्स ऑफ लाइक opportunity. So wages, in crux we can say that industry needs to work on the wages which we give to our people. If individuals are getting good wages, good salary, then automatically the trades are going to become aspirational. हाँ, क्योंकि मैं खुद एक कारपेंटर, मैंने इस कंपनी में एज ए कारपेंटर ज्वाइन किया, बट फिर जब आप स्किल होते हो, लाइक मेरे बढ़ने का रीजन यही था कि मैं स्किल था एंड I knew all of it. So तो फिर धीरे धीरे I progressed. So that's how like आपके पास अगर थोड़ा सा आपको काम आता है and then you are skilled with it, like आपके पास थोड़ा सा theoretical knowledge है वगैरह है, तो आपको अच्छे से अच्छा मौका मिलता जाता है. And there's thousands of industries, like if I talk about a small home like उदयपुर, यहाँ पे भी कम से कम 10-15 फैक्ट्रीज है और all together 5,000 people are working in a, तो एक इतने से छोटे से एरिया में भी इतनी अपॉर्चुनिटीज है, तो इट्स एवरीवेयर एंड सैलरीज वगैरह सबकी अच्छी बढ़ ही रही है, क्योंकि अब वैसे भी स्किल जिसको काम आता है हाथ से उसके लिए हमेशा इट्स जॉब मतलब ओपन ही है. Okay. Dinesh ji, may I add something? Yeah, Naren, please. I was coming to you. How to make skills aspirational? सो जैसे अभी अशोक जी डिस्कस कर रहे हैं कि इंडस्ट्री में जो कारपेंटर्स हैं उनकी ग्रोथ नहीं होती है, इसलिए रिस्पेक्ट नहीं है. ग्रोथ इन द सेंस कि एज ए कारपेंटर आप ज्वाइन कर लेते हो, लेकिन व्हाइट कॉलर डेजिग्नेशन या पोजीशन तक नहीं पहुंच पाते हो. तो एक मेन रीजन मुझे ये दिखता है कि जब तक इंडिया के अंदर वुड वर्किंग के अंदर हायर एजुकेशन स्टार्ट नहीं होगी, तब तक वो रिस्पेक्ट आएगी भी नहीं. तो अभी जैसे बीएसडीयू ने बैचलर प्रोग्राम स्टार्ट किया, मास्टर प्रोग्राम स्टार्ट किया, 1-2 यूनिवर्सिटीज और हैं, तो धीरे धीरे अब यूनिवर्सिटीज ने स्टार्ट कर दिया. तो आने वाले जो कमिंग ईयर्स हैं उसमें आप जब वुड वर्कर रखोगे या कारपेंटर रखोगे, वो आपको ग्रेजुएट होंगे, वो मैनेजमेंट में स्किल्स होंगे, वो फर्दर एक बार वो ग्रेजुएट होंगे तो आगे अपना मास्टर कर सकते हैं, आगे अपना डॉक्टरेट कर सकते हैं. तो हायर डिग्री उनके पास में होगी तो नो डाउट मैनेजमेंट की तरफ से उनको भी टाइमली प्रमोशंस मिलता रहेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब उनके पास में बेसिक वुड वर्किंग स्किल्स भी होगी और मैनेजमेंट स्किल्स भी होंगी, तभी जाके वो एक व्हाइट कॉलर जॉब या डेजिग्नेशन की तरफ मूव कर सकते हैं. तो आई थिंक एक ये पॉइंट है, जो जितने ज्यादा कोर्सेज बैचलर और मास्टर डिग्रीज में वुड वर्किंग के अवेलेबल होंगे, उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, इंडस्ट्री अच्छा ग्रोथ करेगी. बाकी इंडस्ट्रीज में अपन देखें जैसे ऑटोमोटिव सेक्टर हो गया या सॉफ्टवेयर सेक्टर हो गया, इसमें रिस्पेक्ट इसलिए क्योंकि उसमें जाता ही एक डिप्लोमा होल्डर या बैचलर होल्डर है. तो एक बार आपने बैचलर किया हुआ है तो इन फ्यूचर आपके पास में एक ऑप्शन है कि आप इन फ्यूचर आप एमबीए कर सकते हो, मास्टर कर सकते हो अपने ट्रेड्स में, या डॉक्टरेट कर सकते हो. बट अभी तक हमारे पास क्या था, सिर्फ आईटीआई थी ये कारपेंटरी की, वो भी 10th पास के बाद या 8th पास के बाद आप आईटीआई कर लेते हो 1 ईयर की. उसके बाद अगर कारपेंटर इंडस्ट्री में चला जाता है तो उसके पास आगे का स्कोप नहीं है, क्योंकि ना तो कोई डिप्लोमा अवेलेबल था, ना कोई ग्रेजुएशन डिग्री अवेलेबल थी. तो उस फील्ड के अंदर आगे पढ़ने का उसके पास में कोई ऑप्शन नहीं था, और आगे पढ़ता नहीं है तो मैनेजमेंट सोचता है ही जस्ट आईटीआई, व्हाई शुड बी प्रमोटेड, तो वो मैनेजिंग लेवल तक नहीं पहुंच पाता. ओके, सो जैसे इंडस्ट्री की बात हुई है, so I would like to shift our focus to Mr. Satyan Thukral. He has been a core member in entire journey of WorldSkills with FFSC. So Satyan, what's your take on the points which we are discussing, that Capel has been a prime sponsor for both WorldSkills 2017 and 2019, even from the regional and national competition in cabinet making and joinery trade.
So my first question, what excites you as an industry to be part of these competitions as an industry? Satyan, you are muted. Unmute you're muted. Good afternoon, everyone. So our journey started with FFSC sometime 4 years back. So when we entered ये सोच करके कि FFSC is a good platform, हमारी marketing हम करें. तो हमारा एजेंडा ट्रेनिंग वगैरह सेकेंडरी था, हमारा एजेंडा खुद का पहले था. लेकिन जब हम अंदर गए हमने देखा कि यार यहाँ पर सही में बहुत ज़्यादा स्किलिंग की और ट्रेनिंग की ज़रूरत है. बहुत बड़ा वैक्यूम है, इंडस्ट्री की डिमांड ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा है. तो जब हम अंदर घुसे तो फिर हमने अपना मार्केटिंग साइड कर दिया और हम लोग दिल से हम लोग ट्रेनिंग के साथ जुड़े. फिर देयर वाज नो लुकिंग बैक. हमने हमारे टोटल 7 डेमो सेंटर्स हैं जहाँ पे हमारे वर्ल्ड की बेस्ट मशीन टूल जैसे SCM हो गया या फेस्टूल हो गया, ये सारे वहाँ पर डेमो के ऊपर. तो हमारा बिजनेस मॉडल भी सेल्स वैल्यूएशन है. कोई भी प्रीमियम चीज, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स ले लो, कोई भी प्रीमियम चीज, और वो है डेमोन्स्ट्रेशन. अगर कोई आप एप्पल के स्टोर में जाएंगे तो वो आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं, टच एंड फील करके दिखाते हैं. ये वर्चुअल चीजें बिकने वाली नहीं. अगर आप प्रीमियम गाड़ी खरीदने जाएंगे तो वो आपको टेस्ट ड्राइव पे लेकर के जाएगा. वैसे ही हमारी मशीन टूल में भी प्रीमियम सेट, उसके अंदर सेल्स डेमोन्स्ट्रेशन से होता है कि ये मशीन क्या काम कर सकती है. जो ब्रांड्स हैं ये फॉर्चुनेटली वर्ल्ड स्किल्स के इंटरनेशनल लेवल पे स्पॉन्सर्स ऑलरेडी रह चुके थे. तो फेस्टूल प्रैक्टिकली हर वर्ल्ड स्किल्स कंपटीशन के अंदर इज वन ऑफ द की सप्लायर्स ऑफ मशीन टूल्स, जस्ट बिकॉज के इट वर्क्स इन अ सिस्टम. उसकी कंसिस्टेंसी मशीन्स की इतनी अच्छी है कि वो वेरिएबल खत्म हो जाता है कि ये कैंडिडेट के पास अच्छी मशीन है, ये कैंडिडेट के पास इतनी अच्छी मशीन नहीं. लेकिन अगर हमको सब कैंडिडेट्स को एक लेवल पे, एक प्लेटफॉर्म पे इवैल्यूएट करना हो तो पहले तो हमको उनको एक स्टैंडर्ड की मशीन्स देनी है, और वो बेस्ट फेस्टूल की आती हैं जो जर्मन कंपनी है. इसमें प्रोसेस ड्रिवन है और जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं वो वर्ल्ड के बेस्ट सेफ्टी स्टैंडर्ड हैं. तो जब हम फेस्टूल के साथ वहाँ पे हमने काम करना शुरू किया तो हमने देखा कि लंदन के अंदर जब भी वर्ल्ड स्किल्स कंपटीशन हुआ तो उसमें की स्पॉन्सर वाज फेस्टूल. जब भी ब्राजील के अंदर वर्ल्ड स्किल्स कंपटीशन हुआ तो वहाँ पे SCM वाज द मेन स्पॉन्सर फॉर SCM. और ये दोनों ब्रांड्स हमारे पास ऑलरेडी डेमो सेंटर्स पे थे. हमारे 60 डेमो सेंटर पे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मशीन्स हैं अंडर यूटिलाइज. वहाँ पर हम लोग कस्टमर्स को बुला करके प्रॉब्ली दिन में 1 बार 2 बार डेमोन्स्ट्रेट करते हैं. तो हमने बोला क्या इसको हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं क्या, कि जो कैंडिडेट्स को ये मशीन्स के ऊपर ट्रेन करना है वो ये मशीन्स खरीदे, वो मशीन्स पे इन्वेस्ट करे, वो कंज्यूमेबल्स पे इन्वेस्ट करे, वो अपना टाइम इन्वेस्ट करे. जो ट्रेनर है वो सारा टाइम इन्वेस्ट करे मशीन पे सिखाने के लिए. इट वाज टू वेरी एक्सपेंसिव. तो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट, जो सबसे बड़ा बॉटलनेक है ट्रेनिंग के अंदर, वाज कैपिटल इन्वेस्टमेंट. हमने बोला कि हम लोग ये काउंसिल के अंदर ये सारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट हमारा जिम्मा है. वी विल टेक केयर ऑफ ऑल द डेमो सेंटर्स, ऑल द रेंट, ऑल द पावर एंड ऑल द कैपिटल इक्विपमेंट जो भी लगेगा वो हम देंगे. क्योंकि हमारे लिए कोई एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही थी, एडिशनल बर्डन नहीं था, या हम वो इनकम पे डिपेंडेंट नहीं थे कि जो हमको वर्ल्ड स्किल्स को सपोर्ट करने से रोके. तो हमने अपने 7 डेमो सेंटर हमारे काउंसिल के लिए खोल दिए. हमने बोला आपको जैसे यूज करने, जब यूज करने, जहाँ बोलोगे हमारी मशीन्स अवेलेबल. तो NSDC में हर वर्ल्ड स्किल्स में या इंडिया स्किल्स में उनको मशीन टूल्स लगते हैं. हम लोग को ब्रांड न्यू मशीन टूल्स देनी पड़ती हैं. वो कैंडिडेट्स यूज करते हैं, ट्रेन करते हैं. कभी वो मशीन्स अब्यूज होती हैं, कभी मशीन्स बिगड़ जाती हैं. तो वो सारा हमने बोला कि कोई चिंता नहीं, जितना आप ट्रेनिंग करो, मशीन यूज हो अब्यूज हो,
जब तक बच्चे उसको सीखेंगे नहीं, जब तक उसके साथ ये नहीं करेंगे, बिगड़ेगी हमारी है, नो प्रॉब्लम, वी विल टेक केयर ऑफ दीज मशीन, लेकिन उनको यूज करने दो। जब तक वो यूज नहीं करेंगे तब तक उनको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और ये प्रोसेस ऐसा नहीं है कि हमने कुछ दिनों में इसको सिखा दिया, दिस इज अ लॉन्ग प्रोसेस। अगर ये दिस इज ओलंपिक ऑफ स्किलिंग, तो हम ये नहीं सोच सकते कि हम लोग आज हमने प्रैक्टिस किया कि कल हमारा कंपटीशन है, हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इंटरनेशनल एरिना में जाकर के कंपटीशन करेंगे और जीत कर आ जाएंगे। इट इज इम्पॉसिबल। तो ये प्रोसेस कम से कम 3 साल 4 साल पहले शुरू होना चाहिए, जहाँ पे कैंडिडेट की एज जो है, एज इज अ क्राइटेरिया। वहाँ पे कैंडिडेट की एज है अगर 21 ईयर्स की, तो वो लगभग 17 साल 18 साल तक उसको सीरियसली उसको इंडिया स्किल्स कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करना है, उसको रीजनल लेवल के ऊपर या इंडिया स्किल्स नेशनल लेवल के ऊपर उसको उसकी स्किल्स में सारा ही करना है। सारी जो भी स्किल्स हैं ये मॉड्यूल्स भी जो हैं ये वर्ल्ड स्किल्स डिफाइन करता है कि यही हिसाब से इसकी मार्किंग सिस्टम होगी, यही हिसाब से इसका प्रोसेस होगा। तो मेरा मानना ये है कि हम स्पॉन्सरर इसलिए हैं, मेरा मानना ये है कि कोई भी बेस्ट फर्नीचर बनाना हो या कोई भी चीज़ बनानी हो, आपको अगर कोई चीज़ बेस्ट बनानी है तो यू रिक्वायर बेस्ट मशीन टूल्स, you require the best raw material, you require process knowledge and you require an attitude। अगर ये 4 चीजें होंगी ना तो ही हम लोग वर्ल्ड स्किल्स कंपटीशन में जीत सकते हैं। जो जीते हैं वो ये 4 चीजों की वजह से जीते हैं, और कहीं पे अगर मिस हुआ है हमसे कुछ तो वो ये 4 चीजों में कहीं ना कहीं हमारे से कुछ मिसफायर हुआ। Satyan, we have a lot of industry partners in the audience. So just to be very focused, what Capel has drawn as a benefit from these skill competition as an industry? So जैसे मैंने पहले बोला कि पहला आइडिया तो हमारा मार्केटिंग, लेकिन वो मार्केटिंग कहीं हमारा वो एजेंडा ही पीछे रह गया, बिकॉज यहाँ पे जो जरूरत थी इंडस्ट्री को, वो हमको लगा कि दैट इज अ बिगर मोटिव फॉर अस। और लास्ट में सारा पर्पस क्या है, सिर्फ मशीन बेच करके पैसा कमाना है या इंडस्ट्री को एक नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जाना। तो आवर आइडिया वाज हाउ डू वी कंट्रीब्यूट फ्रॉम आवर कंपनी एंड हेल्प दिस इंडस्ट्री टू गो टू नेक्स्ट लेवल। तो प्लस लगभग 1500 फैक्ट्रियां मैंने खुद मेरे हाथों से शुरू की होंगी पिछले 10 साल में। तो मैं कोई भी फैक्ट्री मालिक को पूछूं कि बॉस आपका पेन एरिया क्या है, तो ओके उनके तो बहुत सारे पेन एरियाज होते हैं, लेकिन जो मेजर फैक्टर था वो बोले कि हमारा जो स्किल्ड लेबर सेक्टर है ना, ये हमारा पेन एरिया है। तो लेबर तो इंडिया में बहुत सस्ती है, लेकिन स्किल्ड लेबर बहुत महंगी है। और हम लोग स्किल्ड लेबर एक फैक्ट्री में लगाता हूँ तो उसके अंदर स्किल्ड लेबर ऐसा नहीं कि कोई बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ से बहुत सारे वर्कर्स बहुत इजीली मिल जाते हैं। तो हम लोग सबसे इजी काम करते हैं कोचिंग। 100 रुपए में अगर कोई काम कर रहा है तो 120 रुपए में उसको ऑफर दे करके आजू बाजू की फैक्ट्री से उठा, कहाँ काम कर रहे हो जी, 100 रुपए में यहाँ काम कर रहे हो, 120 में हमारे पास आता है। अब वो बंदा जब 120 में आपके पास आता है तो वो कॉस्ट तो आपकी 120 की लग गई, लेकिन वैल्यू जो कंट्रीब्यूट कर रहा है वो आपकी 100 की ही रही। जो काम वो वहां करता था वही काम आपके पास करेगा। तो जब वो आपकी कॉस्ट ऊपर हो गई तो आपका सेलिंग प्राइस ऊपर हो गया। आपका सेलिंग प्राइस ऊपर हो गया तो चाइना बोला एक दोनों बैठो, मैं मटेरियल सप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पे द एंटायर इंडस्ट्री लूजेस, द एंटायर कंट्री। तो अगर हम लोग को ये लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में ये चैलेंज हमको रिजॉल्व करना है, तो वी नीड टू क्रिएट पाइपलाइन ऑफ स्किल्ड लेबर। जो अगर हम लोग जितनी बड़ी पाइपलाइन रखेंगे जहाँ पे हम लोग इन्फ्यूज करते रहे, लोग आए स्किल हुए बाहर निकले, लोग आए स्किल हुए बाहर निकले, तो इससे कॉस्ट भी रीजनेबल रहेगी, इंडस्ट्री को कॉस्ट रीजनेबल रहेगी, जो स्किल्ड लेबर है वो अबंडेंस में अवेलेबल रहेगी, और जो इंडस्ट्री का लेवल है वो हमारा नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। तो अगर हम इंडस्ट्री में चाइना को देखें तो वो लोग आज उनकी स्ट्रैटेजी वॉल्यूम की है, वो लोग सब वॉल्यूम के ऊपर जीतते हैं। वेयरएज इंडिया की जो स्ट्रैटेजी है वो वॉल्यूम बेस्ड नहीं है, क्योंकि हमारी वर्कशॉप्स छोटी हैं, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर छोटा है, हमारे पोर्ट्स, हमारा ओवरऑल
इकोनॉमी जो है वो डोमेस्टिक ज़्यादा है और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कम है, चाइना जैसी नहीं है। लेकिन हम लोग और हम लोग यूरोप जैसे भी नहीं है। यूरोप के अंदर द डिज़ाइन लेवल, एजुकेशन लेवल इज़ वेरी वेरी हाई। तो वहाँ पे वो इनोवेट करते हैं, डिज़ाइन लेकर के आते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं, तो वो सारा उनका एजुकेशन से ही शुरू होता है। और वर्ल्ड स्किल्स इज पार्ट ऑफ दैट एजुकेशन। कंपटीशन लेकर के आना विल not just give dignity to the trade, but also bring in spirit of competing and getting better than others. And World Skills is the best platform जहाँ पे बच्चे जो ट्रेड में आना चाह रहे हैं वो प्लेटफॉर्म से सीखें, कॉम्पीट करें और पूरी इंडस्ट्री को नेक्स्ट लेवल पे लेकर गए। तो एक चीज जो चाइना के पास है वॉल्यूम बेस्ड, एक चीज जो यूरोप के पास है एजुकेशन, रिसर्च, डिजाइन, इंडिया एक चीज में स्ट्रांग है जो ना चाइना के पास है ना यूरोप के पास है, एंड दैट इज वी कैन डू कस्टमाइजेशन ऑन स्मॉल वॉल्यूम, जो चाइना को इंटरेस्ट नहीं है और यूरोप में अफोर्डेबल नहीं है, वो हम लोग कर सकते हैं। तो अगर हम लोग अपना सेगमेंट कस्टमाइज्ड फर्नीचर के ऊपर ये करें, और इसके अंदर तीनों ही ट्रेड इन्वॉल्व है, इसके अंदर कैबिनेट मेकिंग इन्वॉल्व है, इसके अंदर जॉइनरी इन्वॉल्व है, इसके अंदर कारपेंटरी इन्वॉल्व। कारपेंटरी इंडिया में इनफैक्ट सबसे कम कारपेंटरी चलती है, तो इंडिया इज नॉट एट ऑल स्ट्रॉन्ग इन कारपेंटरी। और हम लोग एज राइटली सेड पहले आप लोगों ने जो डिस्कस भी किया, तो जो कैबिनेट मेकिंग है, कैबिनेट मेकिंग के एग्जाम्पल हैं जो इंजीनियर्ड वुड है, पैनल प्रोसेसिंग है, जैसे प्लाईवुड हो गया, एमडीएफ हो गया, पार्टिकल बोर्ड हो गया, इससे बना हुआ जो फर्नीचर है वो कैबिनेट मेकिंग में, जनरली कैबिनेट मेकिंग में ये यूज होता है। तो अगर आप मॉड्यूलर किचन बना रहे हैं, अगर आप वार्डरोब्स बना रहे हैं, या आप कोई भी कैबिनेट बना रहे हैं, डब्बा बना रहे हो, अगर आप, तो वो कैबिनेट मेकिंग। वही चीज जब भी आप सॉलिड वुड पे काम कर रहे हो, जॉइनरी या डाइनिंग टेबल हो गए, चेयर्स हो गई, सोफा हो गया, ये सारा जॉइनरी का काम है। इनफैक्ट जॉइनरी इंडिया के अंदर पुराना स्किल है और इंडिया इसमें बहुत स्ट्रांग है। जॉइनरी इंडिया जो हम लोग के विश्वकर्मा समाज से हैं, सुतार समाज से हैं, राजस्थान से हैं, इन लोग का जो स्किल है, इन लोग का जो हुनर है, वो एक्चुअली जॉइनरी। तो जॉइनरी में इंडिया बचपन से ही अपने कारपेंटर नेक्स्ट जनरेशन को वो ट्रेड सिखाता था, और हम लोग जॉइनरी में हमेशा से स्ट्रांग थे। कारपेंट्री जो है वो लकड़ी के घर बनाना है, जो रूफिंग है वगैरह, जो इंडिया के अंदर कम चलती है, यूरोप या यूएस के अंदर आपको लकड़ी के घर बहुत सारे मिल जाएंगे। तो हम लोग अगर यही वर्ल्ड स्किल्स की मॉड्यूल हम लोग अगर अपने काउंसिल के अंदर, हम लोग अगर अपने एजुकेशन के अंदर, ट्रेनिंग मॉड्यूल्स के अंदर यही बेस से डालेंगे, तो पहले तो हम लोग राइट प्रोसेस में जाते हैं, इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी, इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ फिनिशिंग, इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन किस चीज की? हमको रॉ मटेरियल बचाना है, हमको टाइम बचाना है, हमको लेबर बचानी है, हमको सारी एनर्जी बचानी है, हमको सारे रिसोर्सेज जो भी लग रहे हैं एक चीज बनाने में। क्या मैं कम टाइम के अंदर ज्यादा फर्नीचर बना सकता हूँ? क्या मैं कम स्पेस में काम कर सकता हूँ? क्या मैं कम लेबर के साथ काम कर सकता हूँ? क्या मैं कम स्किल के साथ काम कर सकता हूँ? क्या मैं वेस्टेज को मिनिमाइज कर सकता हूँ? क्योंकि जब भी हम ये करेंगे तो ही हम लोग सस्टेनेबल होंगे। तो हमारी काउंसिल के अंदर पहले उसका बहुत प्रचार भी हुआ था, इट इज कॉल्ड जेड, जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट। मैं गवर्नमेंट इसको जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट के अंदर का मतलब है कि हम सबसे पहले सेफ्टी ऑफ लेबर, जो काम कर रहे हैं उनकी सेफ्टी ऑफ एनवायरनमेंट के, हम लोग अपने आजू बाजू में जो एनवायरनमेंट है उसको डिस्टर्ब ना करें, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड सेफ्टी ऑफ मशीन टूल्स, ओके ठीक है, मशीन टूल्स हम लोग यूज कर रहे हैं, वो बिगड़नी नहीं चाहिए, इट्स पार्ट ऑफ जीरो इफेक्ट। तो अगर हमने अपनी नेचर को खराब नहीं किया, अगर एनवायरनमेंट को खराब नहीं किया, अगर हेल्थ वर्कर जो काम कर रहे हैं वो वही क्या डस्ट सूंघ रहे हैं, कि जितनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम डस्ट की है, क्योंकि जितनी बारीक होगी डस्ट उतना लंग्स भी कैप्चर नहीं करेगा, वो ब्लड में जाएगा, और ये 10 साल के बाद किसी को एस्थमा, किसी को
कोई बीमारी लगेगी जस्ट बिकॉज कि उसने 10 साल तक अपना ख्याल नहीं रखा, उसको 100 मीटर की दौड़ लगाने को बोलोगे तो लगा नहीं पाएगा। तो जीरो डिफेक्ट के अंदर जो डिफेक्ट पार्ट है दैट इज द बेस्ट क्वालिटी इन गिवन रिसोर्स। अब ये दोनों को देखोगे तो एक्चुअली पूरा वर्ल्ड स्किल्स का मॉड्यूल ही इसके ऊपर बेस्ड है। जीरो डिफेक्ट पे ही पूरा बेस्ड है। क्या वो कम टाइम में वो स्टूडेंट जो है, जो कॉम्पिटिटर है, वो अपनी सेफ्टी के साथ ऑप्टिमाइज रॉ मटेरियल के साथ कम टाइम के अंदर मैक्सिमम आउटपुट या बेस्ट क्वालिटी निकाल सकता है और जीरो डिफेक्ट के साथ निकाल सकता है। तो ये अगर हम लोग इकोसिस्टम को राइट फ्रॉम ट्रेनिंग टू कंपटीशन, रीजनल इंडिया स्किल्स एंड वर्ल्ड स्किल्स, अगर हम लोग उसको इफ वी इंग्रेन दिस, अगर हम लोग उसको अपने ट्रेनिंग मॉड्यूल्स में डाल दें तो एक जनरेशन लगेगी हमको और वी विल हैव नॉट वन, all our trade center, all our trades will get us medals। इंडिया स्किल्स के अंदर अच्छा है, हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग स्किल्स में अच्छे नहीं है। अगर हम लोग साउथ कोरिया को देखें, अगर हम लोग दूसरी कंट्रीज में देखेंगे तो हमारा स्किल लेवल उनसे बेहतर है, लेकिन हमको एक पॉलिशिंग की जरूरत है वहाँ पे। जस्ट बिकॉज के वो बचपन से ही उनको पॉलिश कर करके तो वो हमसे आगे दिखते हैं वर्ल्ड स्किल्स कंपटीशन में। लेकिन अगर यही प्लेटफॉर्म हम अगर अपने बच्चों को दें, हमारी इंडस्ट्री को दें, तो आई एम श्योर इंडिया सारे ट्रेड में मेडल लेकर के आए। या दिवेश? दिवेश मेरी आवाज आ रही है? Yeah, sorry, my internet is unstable. So we will move on to Anant Kumar, our first candidate for cabinet making. Hello, Anant, are you there? Hello, Anant. Going back to Ashish and Naren and Ashok, there are a lot of candidates who are in the audience who are going to participate in World Skills 2021. They are preparing for World Skills 2021. So your advice from your side, from let's begin with Ashish, your advice to the participants who are practicing because of this COVID-19, the cycle is getting delayed, but we need your suggestion so that they keep on practicing till the time competition starts. We begin with you, Ashish. See, this time which they have got, the extra time during COVID, so they should consider this as an opportunity and work to hone their skills, and actually the precise skills. It's not just practice, it's perfect practice what will make the difference. They should look at previous year test projects, not only world skills, also the India skills, all the sample test projects which we have shared right from the zonal level, zonal, state, regional and national levels. They should discuss with their trainers, do a lengthy discussion, not just practical, the theory part as well, and understand well. Create a step-by-step process which can be repeated until each aspect they are able to do it perfectly. As Satyan said, once each of them undergoes this kind of training on their own or for world skills, maybe right now it is for world skills, but later on it will be for the profession. If they keep doing that
and more the number of people do, one, industry will get a better trained workforce. Second, you will get a better pool of competitors among to select. And as Ashok said, the challenge which he and Anand faced in the very first beginning, first stage in 2016, that he took little more time to understand the machinery and all. So that those things will be covered up during this point of time, plus the internal motivation. So Ashok ji, few words from your side for the competitors who are practicing. मैं उनको सबको यही कहना चाहूँगा कि वो थोड़ा परफेक्शन की तरफ ध्यान दें कि जो भी कर रहे हैं. And world skill is not about making a cabinet. It's about कि जो उसमें अलग-अलग मार्किंग स्कीम वगैरह होती है उनमें परफॉर्म करना कि इसमें इतने नंबर है, इसमें इतने नंबर. What I've seen, like in the last time, the person who won the gold medal, he couldn't like finish all the cabinet, but he still won the gold medal because वो उनको पता है कहाँ क्या है. But apart from this is for the world skill. But हाँ, जो भी काम कर रहे हैं और अच्छी कोई बड़ी इंडस्ट्री से कनेक्ट होके जहाँ पे सब मशीन्स अवेलेबल हो, like केपल है, like 4-5 centers all over India, तो वहाँ जाके वो कर सकते हैं. और बड़ी इंडस्ट्रीज like even here in Udaipur or in Mumbai, wherever they are, but एक बड़ी इंडस्ट्रीज में अच्छे टूल्स के साथ वेल इक्विप्ड ट्रेनिंग करें. और फिर फर्नीचर फिटिंग काउंसिल हुए, हम हुए, वहाँ से मटेरियल ले कि क्या क्या होता है वर्क स्किल के बारे में. और ऑनलाइन इट्स ऑल अवेलेबल कि ये टेस्ट मॉड्यूल होते हैं और इसमें ऐसा करना होता है, कितना टाइम फ्रेम है, इट्स ऑल देयर. तो वही फोकस करके उसको परफेक्ट करने की कोशिश करें. अपनी स्किल्स को हमेशा ये ध्यान रखें कि जो वो कर रहे हैं उससे बढ़िया कोई नहीं कर सकता. दैट्स लाइक वहाँ पेस्ट करना ही पड़ेगा. So Naren Singh, your a few lines for the competitors who are practicing before we move on to Anand. देखिए, जैसा अभी डिस्कशन चल रहा है अपना, ज्वेलरी जो है इंडिया की बहुत पुरानी ट्रेड है और जो भी वुड वर्कर हैं इंडिया में उनके ब्लड में ज्वेलरी है. थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो है प्रिसीजन का, एक्यूरेसी का. जैसे अभी सत्यन सर ने बताया फेस टूल के बारे में, एक लाइन में ऐड करना चाहूंगा. फेस टूल जो है वो एक्यूरेट तो है ही, इसके साथ साथ जो इनका R&D डिपार्टमेंट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है. इंडस्ट्री के अंदर जो भी मशीनिंग प्रॉब्लम्स आती है उनका सोल्यूशन सबसे पहले फेस टूल लेके आता है पावर टूल्स में. एक छोटा सा एग्जांपल दूं, जैसे वर्ल्ड स्किल के अंदर कंपटीशन में आपको एक जॉइंट्स बनाना है, तो एक जॉइंट को बनाने के 3, 4, 5 बहुत मेथड हो सकते हैं. फेस टूल के पास में ऐसे अटैचमेंट है कि आप उस जॉइंट को मिनिमम टाइम में हाई एक्यूरेसी के साथ में डेवलप कर सकते हैं. और वर्ल्ड स्किल के अंदर कंपटीशन के अंदर जो टाइम फैक्टर है वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर. तो अभी इंडियन वुड वर्कर्स हैं, उनके साथ में एक इश्यूज ये आता है कि दे आर नॉट यूजिंग हाई प्रिसाइज पावर टूल्स. बट इसको कवर किया जा सकता है अगर उनको बेसिक नॉलेज है. तो जैसे सत्यन सर ने बताया, इन पावर टूल्स पे ट्रेनिंग ज्यादा टाइम नहीं लेती है. दूसरा जो प्रॉब्लम रहता है वो डिजाइनिंग और ड्राइंग का रहता है, उसको भी कवर किया जा सकता है. तो आपके अंदर एक पैशन होना चाहिए कि मुझे कंपटीशन में जाना है, मुझे कंट्री को रिप्रेजेंट करना है और मुझे ये कंपटीशन जीतना है. बाकी जो सारी चीजें हैं वो एक्सपर्ट, सेक्टर स्किल्स, NSDC वो सब कुछ मैनेज कर सकते हैं. आपकी ट्रेनिंग मैनेज कर सकते हैं, आपको मोटिवेट कर सकते हैं, आपकी लर्निंग को कंटिन्यू कर सकते हैं, सब कुछ पॉसिबल. Okay, thank you, Naren. So good to have you back, Anand. Just few lines from your side before we move on to our speaker session. You have been a first candidate to represent India in World Skills 2017 cabinet meeting. I would like to know your experience. आपका experience कैसा रहा और after World Skills, how is your life? Good afternoon, everyone. Sir, मेरा जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुआ. My father also from a woodworking background. When I was 18 years old, तब मेरे पापा के साथ कुछ ऐसा हैपन हुआ कि तब से मैंने डिसाइड किया कि उनकी हेल्प करना वुडवर्किंग फील्ड में ही. वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई वुडवर्किंग की.
you participated in national competition 2016 जो एक offline competition हुआ because as mentioned by Ashish that cabinet making was introduced later on. So how was your training program in IVO before World Skills? World Skills में जाने से पहले तुम्हारा training schedule क्या रहता था? सर मेरा ट्रेनिंग शेड्यूल मेरा सुबह 9 साढ़े 9 बजे से मेरा ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाता था। मुझे मेरे जो एक्सपर्ट है अशोक सर, वो मुझे सारी चीजें जो भी मेरा मॉड्यूल रहता था दिन का वो मुझे बता के चले जाते थे। और फिर उसके बाद बीच में कभी जब मुझे कोई प्रॉब्लम आती थी उस मॉड्यूल में तो मैं उनको कॉल कर लेता था या फिर वो एक दो बार आके मुझे देख जाते थे। मतलब मेरा पूरे दिन का शेड्यूल 12-13 घंटे मुझे ट्रेनिंग करना होता था पूरे दिन में। Okay. और how important is physical fitness and diet in entire World Skills training? फिजिकल फिटनेस इसलिए इम्पोर्टेंट है कैबिनेट मेकिंग और जर्नरी और कारपेंट्री में, क्योंकि आपको मतलब मशीन पे भी वर्क करना होता है, आपको वुड भी उठानी होती है, पैनल भी उठाना होता है, तो इसलिए आपकी डाइट भी काफी जरूरी है मेंटेन करना, क्योंकि आपको उससे फिटनेस अच्छी होती है, आपके अंदर स्टेमिना बिल्ड होता है। मतलब डाइट भी काफी इम्पोर्टेंट है इस वुड वर्किंग रिलेटेड फील्ड के लिए। और आपके एक्सपर्ट का रोल क्या रहा आपकी पूरी मेंटरिंग में टिल वर्ल्ड स्किल्स कंपटीशन और उसके बाद? सर एक्सपर्ट का रोल मेरे तो काफी था, मतलब बहुत सपोर्टिव है मेरे एक्सपर्ट। यहाँ तक कि जब मैं यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आया तो काफी मशीन्स वगैरह जो कि एडवांस मशीनरी वगैरह जो कि नहीं थी यहाँ पे वो मेरे लिए अरेंज कराई गई। और फिर वहां से वर्ल्ड स्किल्स के आने के बाद भी उनका जैसे कि मेरे को कोई भी चीज सीखनी है, डिजाइन फील्ड में जाना है या कुछ भी है, तो उनका काफी सपोर्ट था मेरे पीछे और अभी भी है सपोर्ट। ओके, सो अनंत आजकल आप क्या कर रहे हैं? मतलब वर्ल्ड स्किल्स के बाद आपका करियर कहाँ गया है? हाउ योर प्रोफेशनल ग्रोथ हैज बीन? सर वर्ल्ड स्किल्स के बाद मैंने एक गोल सेट कर लिया था कि बना लिया था अपना कि जो भी चीज मैं बनाना तो मुझे आता ही है वैसे भी, लेकिन वही चीज मैं डिजाइन करके और खुद बनाऊं, तो मैंने ये गोल सेट बना लिया था उसी समय। और अभी मैं डिजाइन फील्ड में काम कर रहा हूँ, फर्नीचर डिजाइनिंग कर रहा हूँ और साथ में 2-3 लोगों को ट्रेन भी कर रहा हूँ। ओके, सो आप आईवो में you head the design department with 3-4 people training under you? Yes. So thank you Anant, thanks for your time. So guys, we are moving on to our next session where I would like to introduce Mr. Rahul Mehta. He's the Chief Operating Officer for Furniture and Fitting Skill Council. He brings a vast experience in woodworking sector, event management and allied fields. So his passion towards skill development and social development sector has been so much that he left his lucrative corporate opportunities and he joined this development sector. So the session dedicated to Mr. Rahul Mehta is how skill competitions can be your game changer in your professional growth. Over to you, Rahul. Thank you, Devesh. Good afternoon, everyone. Good afternoon, panelists who have come from various backgrounds and have added real value today. जिसका फायदा आई एम श्योर सब पार्टिसिपेंट्स को मिला है। पार्टिसिपेंट्स कैटेगरी में हमारे पास में आज स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं, इंडस्ट्री के लोग भी हैं जो प्रोफेशनल्स हैं, और उन सबकी इंपॉर्टेंस के लिए ही आज इस तरह का सेशन यहाँ पर रखा है दैट एवरीबॉडी कैन गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट। सो टचिंग अपॉन द पॉइंट्स दैट द पैनलिस्ट हैव टॉक्ड अबाउट, आशीष जी ने एनएसडीसी और इंडिया की स्किल्स जर्नी के बारे में बताया कि किस तरह से हमने कॉम्पिटिशन कराया, और उन्होंने जो स्टोरी शेयर करी है विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो ब्यूटी स्किल्स के उस कैंडिडेट की हो जिसने 2012 से चालू करते हुए आज 2020 तक की जर्नी के अंदर में एक कैंडिडेट, एक पार्टिसिपेंट, एक एस्पिरेंट, एक विनर और एक आफ्टर दैट प्रोफेशनल एंड इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना के काम चालू किया है। चाहे नरेंद्र जी हैं जिन्होंने डिफरेंस इन वेरियस वुड वर्किंग ट्रेड्स बताया है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, बिकॉज आज की डेट में जो चैलेंज इंडस्ट्री फेस करती है वो ये है कि वो फर्नीचर इक्वल टू कारपेंटरी समझती है। आज अगर आप किसी को बोलेंगे फर्नीचर इंडस्ट्री में काम करते तो वो ये समझेगा कि आप कारपेंटर है, और ये शायद 10 साल या 15 साल पहले बात करते तो वो बिल्कुल भी यही समझता है कि आप ही कारपेंटर है। जबकि
ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि इस इंडस्ट्री के अंदर में आज EY के एक एस्टिमेट के हिसाब से 2022 तक कम से कम 50 लाख जॉब्स की रिक्वायरमेंट है, जो कि केवल कारपेंट्री पे नहीं है, कम से कम 150 से ज्यादा 150 more than 150 job profiles are there on which there are job opportunities available. So that difference was highlighted, and I'll share some points on that as well. Ashok told us about the difference between the world, where is the world today in terms of the woodworking trade, or whether it's a world today in terms of the overall industry as it is looked upon, and where it is in India, and the gap that exists and how the gap is getting bridged and how we can all get advantage out of it. So even that is very important aspect of takeaway that we can have from the session. Mr. Satyan touched upon from the industry perspective that what is the role that industry is playing today. And I'm very thankful for him to have actually mentioned the part that how his own interest, which was initially based on marketing front, actually changed to a more social and a more industry driven perspective, which was about actually fulfilling the demand of the industry by providing the right skill set. Now, if you'll see today, he represents the industry and likes of the industry which is there. And if he's saying that today that we have demand in the industry for the right skilled manpower, it is just a representation of the kind of opportunity which is available before the youth of the country today, that they can consider furniture, interiors and fitting industry and the light sector as a segment wherein you can develop a career opportunity. And इसके बाद में प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं, अनंत ने अपनी जर्नी के थ्रू बताया है कि किस तरह से एक हम्बल बैकग्राउंड से आते हुए एक सिंपल गोल के साथ में कि अपने फादर को हेल्प करना है, और जो कि यूजुअली वुड वर्किंग के अंदर में रहता है कि आप अपने पापा से सीख रहे हैं, दादा से सीख रहे हैं और आप उस इंडस्ट्री में चले जाते हैं। उन्होंने वहां से चालू करते हुए एक अपॉर्चुनिटी को देखते हुए आज वर्ल्ड स्किल्स में पार्टिसिपेट किया, और वहां से आगे आगे धीरे बढ़ते हुए वो आज एक इंडिया की बड़ी कंपनी के अंदर में डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, और खुद तो कर ही रहे हैं, साथ में दूसरे को भी अब सिखाने के दर्जे पे आ चुके हैं। सो इस अगर पूरे सेगमेंट की बात की जाए, एंड व्हाई आई एम्फसाइज ऑन ऑल द स्पीकर्स एंड व्हाट दे हैव सेड इज दैट द टॉपिक दैट आई एम गोइंग टू टच अपॉन इज दैट हाउ इज दिस स्किल कंपटीशन, बिकॉज़ एवरीबॉडी हु स्पोक टुडे इज कनेक्टेड टू द स्किल कंपटीशन and majorly the world skills competition that is happening. So how is this skill competition actually acting as a game changer? So इसके लिए समझना है जरूरी है कि जिन लोगों की बात अभी हमने करी है ये है स्किल इकोसिस्टम। तो ये गेम चेंजर फॉर स्किल इकोसिस्टम क्यों हो रहा है, ये समझने के लिए ये समझना जरूरी था कि स्किल इकोसिस्टम क्या है। तो ये ट्रेनर्स स्किल इकोसिस्टम है, ये एक्सपर्ट्स स्किल इकोसिस्टम है, ये इंडस्ट्री के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं ये स्किल इकोसिस्टम है, और ये जो कैंडिडेट है ये खुद अपने आप में पूरा स्किल इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही साथ में NSDC और MSD की तरफ से जो सपोर्ट मिल रहा है ये पूरा एक स्किल इकोसिस्टम है। अब इसमें वर्ल्ड स्किल्स कंपटीशन किस तरह से गेम चेंज कर रहा है या फिर क्या ऐसा कर रहा है जिसके कारण आज हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आज इस कंपटीशन होने के कारण हम इस तरह से एक दूसरे के साथ में आमने सामने आ पाए हैं और इस बारे में डिस्कस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से स्किल्स गेम को चेंज कर सकती है या किस तरह से स्किल्स ने गेम को चेंज किया है बहुत सारे लोगों के लिए। आज से 5 साल पहले अगर देखेंगे तो ना अनंत was existing on the world skills map, neither Narendra Singh was existing on world skills map, neither Ashok was existing on world skills map, neither Satyam was existing on world skills map. यहाँ तक कि FFSC भी exist नहीं करता था। तो ये अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी है जो कि क्रिएट हो गई because of the world skills competition that was there. Now talking specifically about skills की importance ही क्यों है, हमें चाहिए ही कि उस स्किल्स की कोई भी चीज करे या उसके ऊपर में कंपटीशन किया जाए। तो सबसे पहली बात एंड दिस फर्स्ट टेक अवे दैट आई वुड वांट पीपल टू टेक फ्रॉम दिस सेशन इज दैट स्किल्स, राइट स्किल्स डायरेक्टली ट्रांसलेट टू द ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज दैट इज अवेलेबल। नाउ दिस स्किल्स कैन बी ऑफ एनी फील्ड एंड दिस स्किल्स कैन ऑफर द अपॉर्चुनिटी इन एनी इंडस्ट्री, नॉट स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट फर्नीचर एंड फिटिंग सेक्टर या फिर इंटीरियर्स, फर्नीचर और अलाइड सेक्टर। तो आज हम उसकी बात करते हुए अगर कहें तो ये स्किल्स जो कि केवल 3 ट्रेड्स ऑफ वर्ल्ड स्किल्स से हम बात करते हैं, जो जॉइनरी हो गया, कैबिनेट मेकिंग हो गया, कारपेंट्री हो गया, इन 3 ट्रेड्स में भी जो स्किल्स लगती हैं वो स्किल्स के बेसिस पे आपको कम से कम भी 20 से 25 अलग अलग तरह के जॉब रोल्स के अंदर में डायरेक्ट करियर बनाने की अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। That is the importance or that is the opportunity that is there. That is why skills is important, or that is why
we are talking about this whole subject, that why skill competitions are also important. So these skill competitions in one way are leading a way, or are leading us towards developing our own skills, because of an end goal of having a good career which can enhance our life, which can enhance our life standards, and which can enhance our overall way of living, apart from benefiting the industry, apart from benefiting the country. हम खुद अपना स्टैंडर्ड बढ़ा सकें, इसलिए आज ये स्किल्स होना बहुत जरूरी है। ये सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें आज अगर टेक अवे लेके ये गेम चेंजर कैसे है, या स्किल इकोसिस्टम में स्किल कंपटीशन गेम चेंजर कैसे है। तो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देना चाहूंगा। क्रिकेट सब देखते हैं, क्रिकेट सबने देखा होगा। आज से 20 साल पहले क्रिकेट का मेजर डोमिनेंस जो था वो था टेस्ट मैचेस के ऊपर में, और स्लोली हमने देखा कि ऑब्जेक्टिव चेंज होते होते T20 आ गया। तो T20 जब आया वो एक नया गेम फॉर्मेट था, स्किल्स क्रिकेट की ही थी लेकिन गेम फॉर्मेट नया था। उसके साथ में क्या हुआ कि जहां पर केवल एक इंडियन टीम के लिए सिलेक्शन होता था, रणजी के लिए सिलेक्शन होता था, रीजनल्स के लिए सिलेक्शन होता था, अपॉर्चुनिटी बढ़ गई कि हर एक सिटी से, हर एक डिस्ट्रिक्ट से, हर एक स्टेट से लोगों के पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हो गई कि वो अलग अलग फॉर्मेट ऑफ द गेम्स में खेल सके। और उसके कारण एक ओवरऑल इकोसिस्टम डेवलप हो गया। इकोसिस्टम डेवलप हो गया, जो कोचेस डेवलप हुए, इकोसिस्टम डेवलप हो गया, जो टीम्स डेवलप हुई, इकोसिस्टम डेवलप हो गया, जो नए कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट कर पाया टू बिकम अ क्रिकेट प्रोफेशनल। तो उससे ओवरऑल इंडस्ट्री को, ओवरऑल इकोसिस्टम को एक फायदा मिला। और आज हम देखते हैं कि किस तरह से T20 की पॉपुलैरिटी इतनी बड़ी कि पिछले 10-12 साल से IPL जैसे मैच ने पूरा डायमेंशन ही बदल दिया जिस तरह से क्रिकेट को देखा जाता है। इसी तरह से एक और एग्जांपल लिया जाए तो ये दिया जा सकता है प्रो कबड्डी, जिसकी हम बात करते हैं। आज से 20 साल पहले कबड्डी के बारे में केवल कबड्डी खेलने वाले या फिर उनसे रिलेटेड जो लोग थे वो जानते थे, बट आज की डेट में जब हम प्रो कबड्डी की बात करते हैं तो हमारे जहन में डायरेक्टली वो इमेज आ जाती है जहाँ के ऊपर बंदे ले पंगा का डायलॉग बोल रहे हैं या ले पंगा का कैंपेन चल रहा है। तो किस तरह से इस कंपटीशन ने एक गेम को, जो कि एक लिमिटेड दायरे में था, लिमिटेड इकोसिस्टम में था, उसने उसकी वैल्यू बढ़ा दी। और आज करियर अपॉर्चुनिटीज कई लोगों के लिए कबड्डी जैसे प्रोफेशन में भी किया है। केवल प्लेयर्स के लिए नहीं, कोचेस के लिए किया है, जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं उनके लिए किया है, जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रन करते हैं उनके लिए किया है, उन सब लोगों के लिए किया। और एग्जाम्पल जो आपसे रिलेट करें और उस तरह का बताया जाए तो इंडियन आइडल, सारेगामापा, रोडीज, अगर इन कॉम्पिटिशन की बात करें तो पिछले 10 से 12 साल से लास्ट चल रहे हैं। और आप देखेंगे कि इन कॉम्पिटिशन से चलते, डांस इंडिया डांस फॉर्म जैसे कॉम्पिटिशन चलते कितने सारे मॉम एंड पॉप डांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स आ गए हैं, कितने सारे लोगों ने इंडस्ट्री के अंदर पार्टिसिपेशन चालू कर दिया, कितने सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी जॉब्स की मिली है, बिजनेस की मिली है, ताकि वो इन डांस करने वालों के लिए, इन डांसर्स के लिए, इन डांस इंस्टीट्यूट्स के लिए कॉस्ट्यूम दे सके, सेट्स डिजाइन कर सके, म्यूजिक की फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके, डांसर की फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके। तो ये सब अपॉर्चुनिटीज भी आज क्रिएट हुई है। तो जब हम बात करते हैं एक पर्टिकुलर स्किल से एक स्किल इकोसिस्टम को इफेक्ट होने की, तो ये कॉम्पिटिशन्स के मीडियम से ये एक प्रूवन एग्जांपल है कि किस तरह से ओवरऑल इकोसिस्टम को एक एडवांटेज, एक फायदा मिला है। तो आज इस कॉम्पिटिशन के कारण ही आज हम ये बात कर पा रहे हैं कि किस तरह से कैबिनेट मेकिंग अलग चीज और कारपेंट्री अलग है। आज इंडिया में इस तरह का सेग्रीगेशन नहीं है, बट विद द मीडियम ऑफ NSTC, विद द मीडियम ऑफ MST, विद द मीडियम ऑफ डेडिकेटेड स्किल काउंसिल फॉर फर्नीचर एंड फिटिंग सेगमेंट, हम इन टॉपिक्स पर और इन ट्रेड्स पर प्रोग्राम्स बना पा रहे हैं, प्रोग्राम्स क्रिएट कर पा रहे हैं, ताकि आने वाली जनरेशंस को ये फायदा मिले कि वो इन अपॉर्चुनिटीज को एक प्रॉपर एजुकेशन, एक प्रॉपर लर्निंग, एक प्रॉपर ट्रेनिंग के माध्यम से अडॉप्ट कर सके और साथ ही साथ उसमें अपना करियर बना सके। तो जिस तरह से आज हम एग्जांपल देख रहे हैं अनंत का, जो एक वर्ल्ड स्किल्स पार्टिसिपेंट होने से लेकर आज एक प्रोफेशनल बन पाए हैं, या जिस तरह से हम एग्जांपल देख रहे हैं नरेंद्र जी का या फिर अशोक जी का, जो कि वर्ल्ड स्किल एक्सपर्ट होने के कारण अपने करियर में भी बढ़ पाए हैं और दूसरों को भी करियर में एडवांस कर पाए। इस सब तरह की अपॉर्चुनिटीज हमारे पास में डेवलप होती है और हमें आज मिलती है। अब इसके लिए हमें क्या करना है? सबसे पहली बात हमें ये समझना है कि कोई स्किल छोटी या बड़ी नहीं है, और कोई स्किल और हर स्किल हमें एक अलग तरह की अपॉर्चुनिटी दे रही है। मैंने एक छोटा सा लिंक आप लोगों के साथ में चैट बॉक्स में शेयर किया है, जहां पर आप वर्ल्ड स्किल्स की वेबसाइट पे जाके अपनी इच्छा अनुसार स्किल्स को चूज कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आप कौन सी स्किल्स के अंदर में एक्चुअली इंटरेस्टेड हो सकते हैं, कौन सी स्किल्स है जिसमें आपको करियर ऑप्शन मिल सकता है। तो ये आपके लिए अच्छा टेक अवे हो सकता है। सेकंड, जो एस्पिरेशनल वैल्यू की बात हम कर रहे थे,
कि आज एक ऑस्ट्रेलिया में या यूरोप में जो बंदा इन स्किल्स के बेस पे ट्रेड में घुसता है वो $50 to $60 पर आवर इनकम अर्न कर पाता है। एक लाइसेंस की जरूरत पड़ती है टू बिकम अ कारपेंटर एंड टू प्रैक्टिस कारपेंट्री। जैसे मेडिसिन के लिए पड़ती है, लॉयर के लिए पड़ती है, उसी तरह से इस फील्ड के लिए भी पड़ती है। तो आने वाले समय में स्किल काउंसिल्स और सेक्टर काउंसिल्स के चलते हुए आपके लिए ये अपॉर्चुनिटीज बनेगी कि आप इन ट्रेड्स में भी, जहां आज 50 लाख से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है 2022 तक, और इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के कारण और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती जा रही है, आप वहां भी अपना करियर बना सकते हैं। सो राइट स्किल्स ट्रांसफॉर्म इनटू राइट करियर opportunities, and these skill competitions will definitely be able to participate in these skills. So I would like to end on that note that you pick any skills, not just into woodworking. It can be anything that excites you, that entices you to have a career in it, and try those skills, practice those skills. Like Satyan also mentioned, like Ashok also mentioned, like Arvind also mentioned, and Ashish also mentioned. प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, तभी आप इसमें निखर के बाहर आ पाएंगे और उसका एक्चुअल फायदा उठा पाएंगे। So, इसे ध्यान में रखते हुए आप कोई भी स्किल्स को पिक करें, उस स्किल्स को प्रैक्टिस करें और इसका मैक्सिमम एडवांटेज अपने लिए, अपनी कंट्री के लिए ले सकें। इसी के साथ आई वुड लाइक टू एंड माय नोट, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल द स्पीकर्स एंड ऑल द पैनलिस्ट्स हु जॉइन्ड टुडे एंड हु contributed their thoughts towards development of our overall ecosystem. Thank you so much, everyone. Thank you, Rahul, for your valuable words and motivating the people out there. So before ending up our session today, we have two categories of people attending our session. One is the students. For students, the links has been shared by Mr. Rahul that you guys can go and visit those links, follow the right handles, follow the NSDC page, follow FFSCs on Facebook, Twitter, Instagram, so that you get the right information at right time for participation or any other event which is coming, which can benefit you guys. And on the other hand, we have industry attending our session. So we are open for industry to join us as a sponsors, to join council as a World Skills partners. They can be the training partner, they can be the industry partner with us, like Satyan mentioned. Because till today we have Bharatiya Skill Development University based out of Jaipur for our joinery, and Airaj Evolution Design Company Limited in Udaipur for cabinet making. We are looking to expand our training partner base for World Skills. So we are open for any institute, any industry for in this matter. So thank you, panelists. I would like to thank everyone individually, Mr. Naren Singh, Satyan Thakral, Ashish, Ashok, Anand, Rahul, to join in. You guys have given your valuable time, and thanks to all the attendees who on early morning and Saturday they gave out their time, listened to us, and I hope that this session has been quite interesting and knowledgeable for you. And for students, I hope that you are going to make maximum out of it. Thank you, guys.